This is 22 November session of the Hindu newspaper analysis for UPSC, in which we will discuss mainly four issues. The first issue is related to four new labor codes. Second issue is related to India-Australia relationship, and third issue is what should be India's policy towards Asia, and fourth issue is related to COP30 climate summit. So let's discuss all the issues in detail. The government has made the four labor codes effective. In this lecture, we will discuss about four labor codes. Lecture is important for GS paper 2, GS paper 3 for prelims and for mains. Why in news? Government notifies four new labor code that replace 29 fragmented law, some of them dating back to 1930. Recently, Indian government ने फोर न्यू लेबर कोड नोटिफाई किए हैं, जिसके लिए अबाउट 29 फ्रेगमेंटेड लॉ को रिप्लेस किया गया है। इनमें से कुछ लॉ ऐसे थे जो 1930 डिकेड के थे। फोर न्यू लेबर कोड: नंबर वन, कोड ऑन वेजेस 2019; नंबर टू, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020; नंबर थ्री, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020; नंबर फोर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये फोर न्यू लेबर कोड हैं। Workers' rights in India are protected by a framework of constitutional provisions and various labor codes that are being consolidated into four major codes to improve workers' welfare and simplify compliance. इंडिया में वर्कर्स के राइट को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड वेरियस लेबर लॉ के फ्रेमवर्क के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, और प्रेजेंट में इन सभी लेबर लॉज को फोर मेजर कोड के अंदर कंसोलिडेट किया गया है, सो दैट वर्कर्स के वेलफेयर को इम्प्रूव किया जा सके। की राइट्स ऑफ वर्कर्स इंक्लूड फोर मेजर कोड। इंडिया के अंदर की राइट्स वर्कर के क्या क्या हैं, जिन्हें फोर मेजर कोड के अंदर इंक्लूड किया गया है। नंबर वन, मिनिमम वेजेस का राइट इन्हें गिवन किया गया है। टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, एंड द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म ट्रेड यूनियंस। ये सभी राइट्स फोर मेजर कोड के अंदर इन्हें गिवन किए गए हैं। Consolidated codes: an overview of the four codes notify the center and their scope. Code on wages: unify four labor law related to wages and bonuses. Industrial Relation Code 2020, consolidated law governing trade union, conditions of employment in industrial establishment, and the settlement of industrial dispute. Code on Social Security 2020, extend social security benefit to all employees and workers, covering both the organized and unorganized sector. Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020, consolidate and modernize 13 existing central labor laws related to workplace safety, health and working conditions. की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू वर्कर्स। इंडिया में वर्कर्स से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज: अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेबर इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट एंड देयरफॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इनेक्ट लेजिस्लेशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लेबर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। यही वजह है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही वर्कर्स से रिलेटेड या लेबर से रिलेटेड लेजिस्लेशन इनेक्ट कर सकते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन: Supreme Court stated that equal pay for equal work is not defined in the Constitution of India. It is a goal which is to be achieved through Article 14, 16 and 39 of the Constitution of India. सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट किया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक ऐसा गोल है जिन्हें आर्टिकल 14, 16 एंड 39 के थ्रू अचीव किया जाना है। Article 14, equality before the law or equal protection of law within the territory of India. Article 16, right of equal opportunity in the matter of public employment. Article 39C, economic system should not result in the concentration of wealth and means of production to the detriment of the entire society. The four labor codes क्या क्या हैं? These are a significant reform to simplify and consolidate 29 existing central labor laws to provide better protection and a coherent framework. Number one, Code on Wages 2019, guarantees minimum wage, timely payment, and equal pay for equal work for all workers, organized or unorganized. कोड ऑन वेजेस 2019 यहाँ पर अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर के ऑल वर्कर्स के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, टाइमली पेमेंट एंड मिनिमम वेज की गारंटी गिवन करता है। नंबर टू, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, इट फोकस ऑन मैनेजिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ट्रेड यूनियंस को मैनेज करने पर फोकस करता है। नंबर थ्री, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 एम्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट टू वर्कर्स।
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड पेंशन बेनिफिट सभी वर्कर्स के लिए गिवन किया जाए, इससे रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस करता है। नंबर 4, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इट मैंडेट सेफ्टी प्रोटोकॉल, हेल्थ स्टैंडर्ड एंड रेगुलेट वर्किंग आवर। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर वर्कर्स के सेफ्टी प्रोटोकॉल, हेल्थ स्टैंडर्ड एंड रेगुलेट वर्किंग आवर से रिलेटेड यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। स्पेसिफिक वर्कर राइट एंड रिलेटेड लॉज, वर्कर्स के क्या क्या स्पेसिफिक राइट्स हैं और उससे रिलेटेड प्री कोड कंसोलिडेशन लॉ क्या क्या थे। राइट टू फेयर वेजेज, यहाँ पर फेयर वेजेज का राइट सभी को मिला हुआ है। द पेमेंट ऑफ वेजेज एट 1936 एंड मिनिमम वेज एट 1948 इंश्योर टाइमली वेज पेमेंट एंड स्टेब्लिश मिनिमम वेज रेट्स फॉर द वर्कर्स। सभी वर्कर्स को फेयर वेज का राइट गिवन किया गया है और ये पेमेंट ऑफ वेजेज एट 1936 एंड मिनिमम वेज एट 1948 के अंदर प्रोविजन किया गया था, सो दैट सभी वर्कर्स को यहाँ पर मिनिमम एज रेट प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी का राइट सभी को गिवन है। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एट 1948 एंड द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एट 1952 प्रोवाइड हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। यहाँ पर उन एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि प्री कोड कंसोलिडेशन पहले के हैं। वर्किंग कंडीशन, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 रेगुलेट सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग आवर्स एंड लीव पॉलिसीज इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोविजन किए गए थे। इंडस्ट्रियल हार्मोनी, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 गवर्न द रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948 के अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन को गवर्न करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किए गए हैं। इट मीन्स एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। राइट टू ऑर्गेनाइज, द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अलाउ वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। प्रीवियस एक्ट ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर सभी वर्कर्स को ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने का यहाँ पर राइट गिवन किया गया था। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अंदर वर्क प्लेस पर वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। The Factory Act 1881 was passed with a view to fix the wage of industrial workers and to allow the workers to form trade union. N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labor movement in British India. The correct answer is B, only two. This is main related question. Success of Make in India program depend on the success of Skill India program and radical labor reforms. Discuss with the logical argument. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। In this lecture, we will discuss about India-Australia relations. Why news? Indian Prime Minister met with the Australian Prime Minister, discussed cooperation in diverse areas, including defense and security, critical minerals, trade and investment, and people-to-people ties. इंडियन प्राइम मिनिस्टर का ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुआ है जिसमें वेरियस इश्यूज को डिस्कस किया गया है, सच एज डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, trade and investment and people-to-people ties. They met in South Africa after attending the G20 Leaders Summit. इनका मीटिंग साउथ अफ्रीका में हुआ है जहां पर G20 लीडर्स समिट हुआ है रिसेंटली। दिस ईयर मार्क द 5th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 2025 इंडिया ऑस्ट्रेलिया कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 5th एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। Both countries progress across diverse sectors from trade and investment to education, sport and renewable energy. दोनों कंट्रीज ने डाइवर्स सेक्टर में प्रोग्रेस किया है, फ्रॉम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Australia and India are also developing a maritime security roadmap to enhance collaboration on maritime domain awareness in the Indian Ocean. ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप डेवलपिंग कर रहे हैं सो दैट इंडियन ओशन रीजन के अंदर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड कोलैबोरेशन को एनहांस किया जा सके। ओवरव्यू ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस का एक ओवरव्यू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल टाइज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस रूटेड इन द कॉलोनियल एरा,
अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस ब्रिटिश रूल के अंडर कॉलोनियल एरा में रूटेड हुए। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर रिलेशंस वर नॉट स्ट्रॉन्ग ड्यू टू डिफरिंग फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट। कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग दोनों कंट्रीज के बिटवीन रिलेशंस स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बिकॉज दोनों कंट्रीज के फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट काफ़ी डिफरेंट थे। सिंस पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा ऑफ 1919 टाइज कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग। पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा यानी लिबरलाइजेशन के बाद एडमिन 1990s के बाद दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहे हैं। comprehensive strategic partnership comprehensive strategic partnership between both was started in 2020। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज के बिटवीन comprehensive strategic partnership 2020 से स्टार्ट हुए। This is based on mutual trust, shared democratic values, and common interest in regional security and economic growth। दोनों कंट्रीज के बिटवीन जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ, इसका जो बेस है मेनली म्यूचुअल ट्रस्ट, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉमन इंटरेस्ट इन रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका बेस है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म regular high-level exchange including annual prime ministerial and foreign ministerial meeting and 2+2 defense and foreign minister dialogue drive the partnership। दोनों कंट्रीज के बिटवीन पार्टनरशिप को ड्राइव करने में रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंजेज इंक्लूडिंग एनुअल प्राइम मिनिस्ट्रियल एंड फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही 2+2 डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग भी दोनों कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किया जाता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप यहाँ पर इनिशिएट किया गया है। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इज अ स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज इन नवंबर 2024 टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी, एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है जो कि नवंबर 2024 में दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था, सो दैट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को एनहांस किया जा सके, एक्सेलरेट किया जा सके, एनर्जी सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके एंड सप्लाई चेन को इंडो पैसिफिक रीजन में डाइवर्सिफाई किया जा सके। टू मिटिगेट द चैलेंजेज, India has pledged to reach 500 gigawatt of non-fossil CO2 fossil electricity capacity by 2030, with about 280 gigawatt to come from solar। क्लीन एनर्जी के बिफोर यानी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के बिफोर जो भी चैलेंजेज हैं, इंडिया ने उसको मिटिगेट करने के लिए 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉजिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इस्टेब्लिश करने का यहाँ पर प्लीज टेकिंग किया है, जिसके अंडर 280 गीगावाट जो होगा वो सोलर एनर्जी के थ्रू अचीव किया जाएगा। इट मीन्स इंडिया ने यहाँ पर टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक नॉन फॉजिल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को बूस्ट करना और अबाउट 500 गीगावाट के लिए यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करना है, जिसमें से 280 गीगावाट सोलर एनर्जी के थ्रू अचीव किया जाएगा। इन जुलाई 2025 half of India's installed capacity is now from non-fossil sources। जुलाई 2025 तक इंडिया ने अपने इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का हाफ नॉन फॉजिल रिसोर्स के थ्रू यहाँ पर अचीव कर लिया है। सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी collaboration on the commercialization of a cutting-edge solar PV technology, including a rooftop solar training academy in India। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज ने सोलर पीवी टेक्नोलॉजी को कॉमर्शलाइज करने के लिए कुछ कोलेब्रेशन किए हैं, इंक्लूडिंग रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी इन इंडिया। ग्रीन हाइड्रोजन joint effort to reduce the cost of green hydrogen production and support the development of a hydrogen economy through initiative as the India-Australia Green Hydrogen Task Force। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्रीज ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ जॉइंट एफर्ट्स किए हैं। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को ग्रीन हाइड्रोजन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स इनिशिएटिव भी टेकिंग किया गया है। एनर्जी स्टोरेज कोऑपरेशन इन बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
दोनों कंट्रीज के बिटवीन सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस के सेक्टर में कॉपरेशन किया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स एंड सोलर सप्लाई चेन। Australia have rich reserve of critical minerals like lithium and rare earth. It can support India's manufacturing needs, can reduce the dependency on China. ऑस्ट्रेलिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स का एक रिच रिजर्व है। क्रिटिकल मिनरल्स सच एज लिथियम एंड रेयर अर्थ ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा है। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग नीड्स को सपोर्ट कर सकता है एंड चाइना पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी, कोलेब्रेशन ऑन सर्कुलर इकोनॉमी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, two-way investment, encouraging mutual investment in renewable energy project and allied industry, aligning with India's Make in India and Australia Future Made in Australia initiative, capacity building and skill training. Both countries developing a skilled workforce for the future renewable energy industry through joint training program and acknowledge exchange. Research and innovation, fostering joint research and innovation through initiatives like the Technology Commercialization Challenge. स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन का क्या स्टेटस है? क्वाड, बोथ नेशंस आर मेंबर ऑफ क्वाड, कोऑपरेट विद द यूएस एंड जापान टू प्रमोट अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ पार्टिसिपेट टू जॉइन naval exercise like Malabar with the US and Japan and bilateral exercise like AUSINDEX and Australia enhancing interoperability। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कुछ जॉइंट नवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, सच एज मालाबार जो कि यूएस एंड जापान के साथ होता है। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ बायलैटरल एक्सरसाइज भी कंडक्ट किए जाते हैं सो दैट इंटर ऑपरेबिलिटी को एनहांस किया जा सके। फॉर एग्जांपल ऑस इंडेक्स एंड ऑस्ट्रा हिंद। लॉजिस्टिक सपोर्ट, द म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA signed in 2020 allow for increased military cooperation and logistical support। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन MLSA 2020 में साइन किया गया है जो कि मिलिट्री कॉपरेशन एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। डिफेंस स्ट्रेटजी, ऑस्ट्रेलिया व्यू इंडिया एज अ टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक। इट वाज स्टेटेड इन इट्स 2024 नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर व्यू करता है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस का क्या स्टेटस है? ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, Economic Cooperation and Trade Agreement, started in 2022. The ECTA has boosted bilateral trade, particularly in textiles, leather, gems, and jewelry for India. CECA, Comprehensive Economic Cooperation Agreement, building on the ECTA, CECA enhanced trade and investment. Bilateral trade, total trade has seen a robust growth. Australia export coal, copper, and natural gas, while India export pharmaceuticals, textiles, and IT services. Critical minerals, both countries are focused on strengthening the supply chain for critical minerals essential for India's clean energy transition. Other areas of cooperation, education and diaspora. India is a major source of international students for Australia. Agreement like the Mutual Recognition of Education Qualifications MREQ facilitated student and professional mobility. The large Indian diaspora in Australia strengthen people-to-people ties. Energy. The two countries are partner of renewable energy partnership and signed a सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट इन 2014। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच 2014 में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, cooperation extend to areas like clean energy, medical research, space technology, and cyber security. Challenges before India-Australia relationship. India-Australia relationship के before क्या क्या challenges हैं? Number one, differing foreign policy goal. Past differences such as India's position on the Russia-Ukraine crisis and its historical non-alignment policy have contrasted with the Australian alignment with Western alliances. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन रिलेशंस के बिफोर कुछ चैलेंजेज हैं सच एज रसिया यूक्रेन क्राइसिस पर इंडिया का जो पोजीशन था वो ऑस्ट्रेलिया के पोजीशन से काफ़ी डिफरेंट था।
इंडिया का हिस्टोरिकल नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की अलाइनमेंट पॉलिसी से काफ़ी डिफरेंट रहा है। ट्रेड पोटेंशियल, डिस्पाइट रिसेंट एग्रीमेंट, untapped potential and market access barriers remain, partly due to exclusions of certain agricultural goods and WTO disputes. Attack on the diaspora. Incident of attack on the Indian diaspora and the vandalization of temples by the extremist element in Australia have strained relations between both nations. Geopolitical complexities, evolving alliances like AUKUS, Australia, UK, and US, and differing perceptions of China pose challenges to the strategic alignment. कुछ अदर अलायंसेस सच एज AU, KUS, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US इवॉल्व हो रहे हैं एंड चाइना का डिफरिंग परसेप्शंस ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के बिफोर कुछ चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। In this lecture, we will discuss about COP30 climate summit. Why in news? Recently, major international climate summit COP30 was held in Belém, Brazil from November 10 to 21. COP30 referred to the 30th Conference of Parties to the UNFCCC. Recently, COP30 का जो समिट हुआ है वो ब्राज़ील में हुआ। 10 नवंबर से 21 नवंबर तक ये कंडक्ट कराया गया। COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 30th एडिशन है। ये UNFCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर कंडक्ट कराया जाता है। अबाउट COP30 ऑफ ब्राज़ील, लोकेशन एंड डेट, बेलेम ब्राज़ील फ्रॉम नवंबर 10 टू 21। इसका जो लोकेशन रहा है वो ब्राज़ील रहा है और 10 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 21 नवंबर को एंड हुआ। थीम कॉप ऑफ एक्शन और द इम्प्लीमेंटेशन कॉप, फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एंड मूव बियॉन्ड मेरे प्लीजेज। COP30 का जो थीम रहा है वो कॉप ऑफ एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन कॉप रहा है। इस समिट के अंदर जो फोकस किया गया है वो मेनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर फोकस किया गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्रीज टुवर्ड मीटिंग द गोल ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, इंक्लूडिंग लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। COP30 का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा है वो 2015 पेरिस एग्रीमेंट गोल के लिए वेरियस कंट्रीज के द्वारा क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं उसको रिव्यू करना रहा है। साथ ही 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट करना रहा है। Significance. It serves as a platform to assess the first global stocktake, a process under the Paris Agreement that periodically review collective progress towards climate goal, identifying gaps and informing future actions, and for countries to submit updated nationally determined contributions for the 2035 period. ग्लोबल स्टॉक टेक इसका मेन फोकस रहा है। साथ ही नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंडर कंट्रीज को 2035 पीरियड के लिए यहाँ पर अपने NDC सबमिट करने होंगे और इससे रिलेटेड इस 30 समिट के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए। की एरियाज एंड इशूज ऑफ COP30। COP30 के फोकस एरियाज एंड इशूज क्या क्या रहे? नंबर वन, क्लाइमेट फाइनेंस। एन इम्पोर्टेंट इशू वॉज द न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल NCQG ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस पर NCQG से रिलेटेड इशूज को यहाँ पर डिस्कस किया गया। डेवलप्ड नेशंस वर एक्सपेक्टेड टू स्केल अप फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प देम मिटिगेट एंड अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। डेवलप्ड नेशंस से एक्सपेक्ट किया गया है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फाइनेंस सपोर्ट स्केल अप करेंगे सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकें। नंबर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। Countries were urged to present a more ambitious and credible 2035 NDCs, bridging the gap between current emission trajectories and Paris Agreement target. COP30 के अंदर कंट्रीज से ये अर्ज किया गया है कि वो अपने एम्बिशियस एंड क्रेडिबल 2035 NDCs प्रेजेंट करें सो दैट करंट एमिशन ट्रेजेक्टरीज एंड पेरिस एग्रीमेंट गोल के बिटवीन गैप को ब्रिज किया जा सके। नंबर 3, फॉसिल फ्यूल फेज आउट। The final negotiations addressed contentious issues related to commitment to transitioning away from fossil fuel. फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशनिंग अवे करने के लिए कंट्रीज का कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इसमें कुछ फाइनल नेगोशिएशंस टेकिंग किए गए।
Number 4, equity and developed nations responsibility. The summit highlighted the need for developed nations to take lead action on emission reduction. Developed countries को emission reduction के लिए lead action taking करने होंगे. Acknowledge their historical responsibility and provide support to developing countries. हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हें एक्नॉलेज करना होगा, साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज को इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना होगा. नंबर 5, अमेजोन कॉन्टेस्ट. ड्यू टू द लोकेशन ऑफ COP30 इन द हार्ट ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, summit put a spotlight on the production of forest, oceans, biodiversity and the right of indigenous people. बिकॉज COP30 जो हुआ है ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट के हार्ट में ये कंडक्ट कराया गया है. यही वजह है कि फॉरेस्ट, ओशंस एंड बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर स्पेशल फोकस किया गया. इंडिजिनस पीपल के राइट पर भी यहाँ पर फोकस किया गया. इंडियाज रोल एंड सबमिशंस. India participated actively, preparing to submit its updated NDCs to showcase its climate leadership. इंडिया ने COP30 में एक्टिवली तरीके से पार्टिसिपेट किया और अपने क्लाइमेट लीडरशिप को शोकास करने के लिए इंडिया प्रेजेंट में अपने NDCs को अपडेट कर रहा है सबमिट करने के लिए. India has already made significant progress on its existing 2030 target, such as exceeding its non-fossil fuel power capacity goal ahead of schedule. इंडिया ने ऑलरेडी 2030 टारगेट को अचीव करने के लिए या उसमें जो भी प्रोग्रेस है उसको सिग्निफिकेंट तरीके से उस पर वर्क किया है. फॉर एग्जांपल नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी गोल जो थे 2030 तक इंडिया के टारगेट से पहले ही इंडिया ने उसको काफ़ी हद तक अचीव किया है. इंडिया अपडेटेड NDCs एम फॉर 45% रिडक्शन इन द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 2030. अपडेटेड NDC के अंदर इंडिया का जो 2030 तक का टारगेट है वो एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP का 45% तक रिडक्शन करना है. 35 तक के लिए अब न्यू NDC यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे. व्हाट शुड बी इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स एशिया? व्हाट इज इशू? India's policy towards Asia should be a comprehensive and proactive strategy, building on the existing Act East and Neighborhood First policies to position India as a responsible regional leader, counterbalance China's influence and foster economic prosperity and security. इंडिया को एशिया में एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल लीडर बनाने के लिए, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी को फोस्टर करने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव एंड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी जो कि एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बेस पर होनी चाहिए. दिस अप्रोच शुड बी बिल्ड ऑन द पिलर्स ऑफ एनहांस्ड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रोबस्ट सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड एक्सटेंसिव सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी. इंडिया का एशिया को लेकर जो अप्रोच होना चाहिए वो कुछ पिलर्स पर बिल्ड होना चाहिए, स्पेशली 4 पिलर्स पर ये बिल्ड होना चाहिए. नंबर 1, एनहांस्ड कनेक्टिविटी. इंडिया को एशियन कंट्रीज के साथ अपने कनेक्टिविटी को एनहांस करना चाहिए. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर फोकस करना चाहिए. सिक्योरिटी कोऑपरेशन को रोबस्ट करना होगा एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को एक्सटेंसिव करना होगा. कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया एशिया पॉलिसी. इंडिया की एशिया पॉलिसी के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? नंबर 1, प्रोमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड रूल बेस्ड ऑर्डर. इंडिया चाहता है कि रीजनल स्टेबिलिटी एंड रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट किया जाए. नंबर 2, सिक्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी सिक्योर करना चाहता है. नंबर 3, एनहांस कनेक्टिविटी. इंडिया अपने कनेक्टिविटी को इस समय एनहांस करना चाहता है. नंबर 4, काउंटर बैलेंस जियोपॉलिटिकल शिफ्ट. जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहे हैं उसको भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है इंडिया. नंबर 5, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी. इंडिया अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है. नंबर 6, स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया की जो है उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है एशिया में. नंबर 1, प्रोमोट रीजनल स्टेबिलिटी एंड रूल बेस्ड ऑर्डर. इंडिया एडवोकेट फॉर अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक. इंडिया चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड होना चाहिए. emphasizing adherence to international law like the UN Convention on Law of the Sea and peaceful dispute resolution. Number 2, secure economic interest. India leverages Asia's fast-growing economies for trade, investment, and supply chain integration
working to reduce trade deficit with regional partners. Number three, enhance connectivity. Transform India northeastern state into gateways to Southeast Asia through enhanced physical and digital infrastructure. कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है सो दैट ये स्टेट साउथ ईस्ट एशिया के लिए गेटवे बन सके, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस किया जा सके। नंबर वन, काउंटर बैलेंस जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, provide a democratic and reliable alternative to China's growing assertiveness and influence, that is Belt and Road Initiative, particularly in the Indian Ocean region and South China Sea. इंडियन ओशन रीजन एंड साउथ चाइना सी रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस ग्रो हो रहा है। इंडिया चाइना के एक रिलायबल अल्टरनेटिव के तौर पर वर्क कर रहा है बिकॉज इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। नंबर 5, इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी, India want to diversify energy sources and secure long-term agreement with energy-rich Central and Western Asian nations. इंडिया चाहता है कि एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई किया जाए एंड लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को सिक्योर किया जाए। नंबर 6, स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया नेविगेट कॉम्प्लेक्स ग्रेड पावर राइवलरीज यूएस, चाइना, रसिया with maintaining strategic autonomy and prioritizing national interest. What multi-pronged approach should be followed by India in Asia? इंडिया को एशिया में कौन कौन सा मल्टी प्रोंड अप्रोच फॉलो करने चाहिए? नंबर वन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड, इंडिया को एशिया में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड पर फोकस करना चाहिए। रिव्यू एंड लिबरलाइज ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया को ट्रेड एग्रीमेंट जितने भी एशियन कंट्रीज के साथ किए गए हैं उन्हें रिव्यू करना होगा और लिबरलाइज करना होगा। India should review the ASEAN-India Trade in Goods Agreement to ensure a balanced and equitable trade relations. इंडिया को आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट को रिव्यू करना चाहिए सो दैट इक्विटेबल ट्रेड रिलेशंस को बैलेंस किया जा सके। डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन, इंडिया को सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना होगा एशिया रीजन में। इंडिया शुड एनकरेज इंटीग्रेशन इनटू रीजनल वैल्यू चेन इन सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स, pharmaceuticals, and green technologies, positioning India as a reliable manufacturing hub. Boost investment. India should focus on the attract investment from East Asian powerhouse like Japan and South Korea, particularly for infrastructure development in India's northeast and neighboring countries like Bangladesh and Myanmar. इंडिया को ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज जापान एंड साउथ कोरिया के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहिए, स्पेशली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंड नेबरिंग कंट्रीज सच एज बांग्लादेश एंड म्यांमार में इन्वेस्टमेंट ईस्ट एशियन कंट्रीज से बढ़ना चाहिए। नंबर 2, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया को एशिया रीजन में कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करना होगा। एक्सेलरेट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, India should focus on a completion and operationalization of key projects such as India Myanmar Thailand Trilateral Highway and the Kaladan Multimodal Transit Transport Project. Operationalize strategic port को operationalize करना होगा। India should ensure the full operationalization of Chabahar port in Iran and foster regional connectivity via the international north-south transport corridor to access Central Asia and Europe. डेवलप डिजिटल कनेक्टिविटी, इंडिया को डिजिटल कनेक्टिविटी को भी डेवलप करना होगा। इंडिया शुड प्रोमोट द इंडियन स्टॉक यूपीआई आधार मॉडल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी अक्रॉस द रीजन। नंबर 3, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया को एशिया रीजन में सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन को भी बूस्ट करना होगा। एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी, India should expand its joint naval exercise, for example Malabar, and intelligence sharing with partners like the Quad nations and ASEAN members to ensure freedom of navigation and address non-traditional threats like piracy. Strengthen defense partnership को strengthen करना होगा। India should deepen defense cooperation and facilitate defense export, for example BrahMos missile to the Philippines, to regional partners to build their capacity and ensure regional deterrence. इंडिया को डिफेंस कॉपरेशन को एशिया के वेरियस कंट्रीज के साथ डीपन करना होगा, साथ ही डिफेंस एक्सपोर्ट को भी फैसिलिटेट करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए इंडिया जिस तरह से फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है उसी तरह से अदर कंट्रीज के लिए भी डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा। इंटेंसिफाई काउंटर टेररिज्म एफर्ट, काउंटर टेररिज्म एफर्ट को इंटेंसिफाई करना होगा।
India should collaborate on intelligence sharing and joint training with Central and West Asian countries to combat regional terrorism and radicalization threat. नंबर 4, सॉफ्ट पावर एंड पीपल टू पीपल टाइप। इंडिया को एशिया रीजन में सॉफ्ट पावर का यूज करना होगा, साथ ही पीपल टू पीपल टाइज पर भी फोकस करना होगा। लिवरेज कल्चरल हेरिटेज। इंडिया शुड यूटिलाइज शेयर्ड हिस्टोरिकल कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज टू बिल्ड डीपर ट्रस्ट एंड पीपल टू पीपल कनेक्शंस। इंडिया को अपने ट्रस्ट को डीपर करने के लिए, पीपल टू पीपल कनेक्शंस को बूस्ट करने के लिए शेयर्ड हिस्टोरिकल कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज को यहाँ पर यूटिलाइज करना होगा। एक्सपेंड एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस को एक्सपेंड करना होगा। इंडिया शुड एनकरेज स्कॉलरशिप, यूथ समिट्स एंड कल्चरल festivals and promote the development of institutions like Nalanda University to foster academic and research collaboration. Mobilize the diaspora. India should engage the large Indian diaspora in the West and Southeast Asia as strategic assets to strengthen bilateral ties and economic cooperation. Conclusion. By implementing these measures, India can effectively pursue its strategic and economic interest in Asia, fostering a stable, prosperous, and connected region with asserting its role as a leading global power. इन सभी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करके इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एशिया में परस्यू कर सकता है इफेक्टिवली तरीके से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।